Good morning, student. Today we will discuss our next chapter, the last lesson of 12th standard. Okay, the last lesson. Okay, this lesson is written by Alfonso Duque. Okay, the lesson is a story, short story. Okay, about the Franco-Prussian War. Okay, it is the story about the consequences after the war when the borders were shared. Okay, when the border was shared and the country has changed their territories and boundaries. So, what are the effect on the life of the people of that area? It is narrated in this chapter. Okay, we will read how people suffered because of the political change, what type of change coming in their life. Okay. So I will start from here. I started for school very late that morning and was in great dread of scolding. Okay, so I mean to say the child, okay, student, child, the character, the protagonist, okay, the main character of the story. Okay, I started for school. मैं स्कूल के लिए चला very late that morning. उस दिन मैं late चला सुबह. Okay, and was in great dread of scolding. और dread mean fear. कि मुझे डर था कि मुझे scolding डांट पड़ने वाली है. Especially because M. Hamel had said, क्योंकि Mr. M. Hamel, okay, the teacher, school teacher. Okay, it is a story of a teacher and a boy, a relationship of a teacher and a boy. Okay, when teacher is teaching them the last lesson, because after that government is changing, territory is changing, and now they have to follow the syllabus of the next country. So this is the last letter which the teacher has to teach them. Okay, so that is the final day, and that day the school is open and the boy is going to the school. So boy that late that morning and he is having the fear. Okay, so initially the boy is not aware about the consequences की what type of change is going to be happen. Okay, तो उस दिन बच्चे को ये ज्ञान नहीं होता है कि कुछ चेंज होने वाला है. वो रूटीन लाइफ की तरह जाता है, रूटीन डेली रूटीन की तरह स्कूल में जा रहा होता है. ओके, तो उसको डांट पड़ने वाली होती है उसके टीचर की. एम हैमल हैड सेड, उन्होंने बोला दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, कि वो मुझे पार्टिसिपल पे, एस मीन टू से द स्टूडेंट, क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे पार्टिसिपल पे क्वेश्चन करने वाला है. मीन टू से उनके जो टीचर हैं वो पार्टिसिपल पे क्वेश्चन पूछेंगे. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे तो पार्टिसिपल का पहला अक्षर भी नहीं पता है. फॉर ए मोमेंट आई थॉट, कुछ समय के लिए मैं सोचता हूँ, ऑफ रनिंग अवे, कि मैं भाग जाऊँ, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर, और मैं सारा दिन स्कूल से बाहर ही बिता दूँ. इट वॉज वार्म सो ब्राइट. ओके, सुबह की मॉर्निंग थी, वो वार्म थी, बिल्कुल ब्राइट थी, सुनहरी थी. द बर्ड्स वर चर्पिंग, बर्ड्स थे वो चहचहा रहे थे. एट द एज ऑफ द वुड, वुड के डंडियों पे, ये शाखाओं पे. एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द sawmill the Persian soldier were drilling. and in खुले खेतों में बैक ऑफ द sawmill एक मील है. ओके, उस मील के पीछे जो मील का जो ग्राउंड है उसमें पर्शियन, ओके, P silent है, it is Russian soldier. Okay, the Russian soldier were drilling. Okay, तो वो अपने रूटीन एक्सरसाइज कर रहे थे, ड्रिलिंग. It was all much more tempting. Tempting मतलब exciting. Exciting than the rule of participle. Mean to watch this drill. Was the drill of the soldier is much more exciting than the participle lecture. But I had to strength to resist. I had the strength to resist and hurried off to the school. कि मुझ में strength है कि मैं वो participle का lecture attend कर लूँगा. and hurried off to the school, और मैं जल्दी से, hurried off में quickly, जल्दी से मैं स्कूल की तरफ चला जाता हूँ. When I passed the town hall, okay, जैसे ही मैं टाउन हॉल को क्रॉस किया, there was a crowd in front of the bulletin board. बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे थे. there was a crowd mean भीड़ थी, people were there.
For the last 2 years, all our bad news has come from there. Mean to say पिछले 2 साल से जो भी bad news थी, mean के जितने भी administrative order थे, administrative order वो कहाँ आ रहे थे? यहीं डिस्प्ले हो रहे थे, बुलेटिन बोर्ड पे had come from there, वहीं से आते थे. And the last lost battle, और जो बैटल हमारा कंट्री हार गया था उसके बारे में भी यहीं पे हमें मैसेज मिला था. The draft, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, या जितने भी ड्राफ्ट होते थे कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर होते थे. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग. ओके, और मैंने सोचा बिना रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अभी क्या कारण हो सकता है कि लोग यहाँ पे इकट्ठे क्यों. व्हाट कैन बी द मैटर ऑफ व्हाट, बिकॉज पीपल वर क्राउड वर देयर. व्हाट इज द कॉज ऑफ क्राउड, कि लोग यहाँ पे इकट्ठा क्यों हैं. व्हाट इज द मैटर. तो ये बुलेटिन बोर्ड था जहाँ पे सारी न्यूज टेलीकास्ट होती थी और सभी न्यूज यहीं से सर्कुलेट होती थी. इट वाज ए कॉमन प्लेस. Then as I hurried by as fast as I could go, फिर मैं जल्दी चला. ओके, hurried mean to say quickly, as fast as, जितना जल्दी मैं चल सकता था. I could go, जा सकता था. The blacksmith, Wetcher, who was there? Blacksmith or Wetcher? Blacksmith, जिसका नाम है Wetcher. Okay, it is the name of blacksmith. Okay, who was there? जो वहाँ पे था. With his apprentice, मतलब उसके apprentice, मतलब उसका जो साथी था, चेला था, उसके साथ रीडिंग द बुलेटिन, बुलेटिन पढ़ रहा था. कॉल्ड आफ्टर मी, मेरे पीछे से मुझे बुलाता है. डोंट गो सो फास्ट, कितना जल्दी मत जाओ. मीन बॉय, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, स्कूल पहुंचने में भी बहुत सा समय है. आई थॉट ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है. एंड रीच मिस्टर हैमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैं दौड़ के पहुंचा, मेरी सांस चढ़ गई और मैं स्कूल के गार्डन में, हैमल्स लिटिल गार्डन, मीन से स्कूल के लिटिल गार्डन में. हैमल वाज टीचर्स. ओके, टीचर्स नेम. तो वहाँ पे मिस्टर हैमल के लिटिल गार्डन में वो पहुंच जाता है और उसकी सांस चढ़ी हुई होती है क्योंकि वो दौड़ के पहुंचता है. यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, आमतौर पे जब भी स्कूल शुरू होता है, देयर वाज अ बीट. बस्सल, बस्सल मीन टू से शोर शराबा, बच्चों की आवाज होती है क्योंकि सभी लोग घोषित कर रहे होते हैं. देयर वाज अ ग्रेट बस्सल व्हिच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो आप स्कूल में भी सुन सकते हो क्योंकि कंटीन्यूअस नॉइस हो रही होती है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे बच्चे होते हैं एक साथ वो एंटर कर रहे होते हैं. तो देयर इज ए ग्रेट बस्सल, वहां पे कंटीन्यूअस वॉइस हो रही होती है. अंडरस्टूड. Usually when the school began, there was a great bustle which could be heard out in the street, जो street में गली में भी सुनी जा सकती है. The opening and closing of desk, okay, जैसे ही वो स्कूल स्टार्ट होता है, opening and closing of desk, इनकी साउंड सुनी जा सकती है. Lesson repeated in unison, उनके मेन ग्राउंड में, असेंबली ग्राउंड में. ओके, यूनिसन मेन ग्राउंड है, वहाँ पे जो लेसन रिपीट हो रही है. वेरी लाउड, जो बहुत आवाज में बोले जाते हैं, ऊंची आवाज में. विद आवर हैंड ओवर द ईयर, जब हम अपने हैंड अपने ईयर पे रख लेते हैं, टू अंडरस्टैंड बेटर, ताकि हमें सही से समझ में आए. काफी आवाज हो रही होती है. ओके, कहीं पे कोई लेसन चल रहा होता है, कुछ लोग तेज आवाज में बोल रहे होते हैं, जैसे अपने स्कूलों में काउंटिंग या टेबल्स को याद किया जाता है. अंडरस्टूड. एंड द टीचर ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर होते हैं वो अपने रूलर को, अपना जो स्केल होता है उनके हाथ में, वो अपने स्केल को टेबल के ऊपर मार रहे होते हैं, जिससे भी टू विच क्रिएट आल्सो साउंड. वो क्यों मार रहे होते हैं? जनरली क्लास को साइलेंट करने के लिए, बच्चों को अटेंशन पे करने के लिए वो लोग एक क्वेश्चन भी बोल दे रही होते हैं. तो जनरली दे आर टैपिंग, टीचर्स आर टैपिंग ऑन द टेबल. बट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, लेकिन अब बिल्कुल सब शांत था. दिस वाज द मॉर्निंग सिचुएशन. मॉर्निंग सिचुएशन ऐसी रहती है, लेकिन आज क्या है, सब शांत था. ओके, सो स्टिल, स्टिल मतलब बिल्कुल शांत. ओके, क्वाइट, बिल्कुल सब शांत था. आई हैड काउंटेड ऑन द प्रमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन. ओके, मैं बिल्कुल शांति से आगे निकलता हूँ.
वो सारी बंद थी पर टोटली क्वाइट, मीन टू से स्कूल में कोई भी एक्टिविटी नहीं थी, सब शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन प्रमोशन टू गेट टू माई ओल्ड गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, कि मैं बिना रुके हुए मैंने काउंट किया ऑन द प्रमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, कि मुझे कोई नोटिस ना करे, मेरी हैमल जो टीचर है नोटिस ना करे, तो मैं बिना रुके हुए विदाउट स्टॉपेज, ओके बिना रुके हुए, ओके अरे एकदम काउंट करके फटाक से मैं मीन टू से जल्दी से अपने डेस्क पे पहुंचना चाहता था। आई हैड काउंटिंग बट ऑफ कोर्स, लेकिन फिर भी दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, और उस दिन सब कुछ बिल्कुल शांत था जैसे संडे की मॉर्निंग में होता है, संडे की मॉर्निंग में होता है। दो द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, ओके तो थ्रू द विंडो, विंडो से मैंने देखा कि मेरे जितने भी क्लासमेट थे ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो अपने प्लेस पे थे, मीन सिटिंग अरेंजमेंट होता है हर क्लास में, वो अपने प्लेस पे ऑलरेडी पहुंच चुके थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, ओके और जो मिस हैमल हमारे टीचर होते हैं मिस्टर हैमल, वो क्लास में घूम रहे होते हैं इधर उधर आगे पीछे, विद हिज टेरिबल, टेरिबल मतलब खतरनाक, आयरन रूलर, उनके पास रूलर होता है, एक छड़ी होती है आयरन की, ओके उसके साथ, अंडर हिज आर्म जो उनके हाथ में होती है। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे डोर खोलना था, एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और सबके सामने जाना था, बिकॉज अगर आप लेट आओगे तो सबको सामने क्रॉस करते हुए जाओगे तो एवरीबॉडी विल नोटिस यू, नाउ ही हैज टू फेस एवरीवन। यू कैन इमेजिन, आप सोच सकते हैं, हाउ आई ब्लस्ड, मैं कितना मतलब कि यहाँ डरा हुआ होगा, ब्लस्ड, ओके एंड हाउ फ्राइटन आई वाज, ओके कि मैं कितना डरा हुआ था, प्लस मतलब मेरा चेहरा कितना लाल हो गया था, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ फियर, क्योंकि अभी टीचर पकड़ेंगे और सबके सामने इंसल्ट होने वाली है। बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हैमल सा मी, मिस्टर हैमल ने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और मुझे बड़े प्यार से बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपने प्लेस पे जाओ। लिटिल फ्रेंड, नाउ द कैरेक्टर, ओके फ्रेंड्स इज द नेम ऑफ द चाइल्ड, ओके हम चाइल्ड का नाम, कैरेक्टर का नाम यहाँ हमें पता लग गया, अंडरस्टूड कि लिटिल फ्रेंड वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, कि हम तुम्हारे बिना ही क्लास स्टार्ट करने वाले थे, ओके फ्रेंड कि हम तुम्हारे बिना ही क्लास को स्टार्ट करने वाले थे, ओके व्हिच लेक्चर दे आर गोइंग टू स्टार्ट, पार्टिसिपल। और I jumped over the bench and sat down at my desk, कि मैं जल्दी से जंप करके अपने बेंच पे पहुंचा और बैठ गया, sat down on my desk. Not till then, तब तक when I had got a little over my fright, okay तब मेरी सांसें रुकी, मैंने कंट्रोल किया मेरे सांसों को। Did I see that our teacher had on his beautiful green coat, तब मैंने देखा, क्या देखा कि मेरे जो टीचर ने आज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ है। He is filled okay, his frill shirt and little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize day. उसकी जो खूबसूरत शर्ट थी और उसकी जो लिटिल ब्लैक सिल्क कैप थी, ओके और ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिसकी चारों तरफ कढ़ाई की हुई थी, मीन टू से उसकी जो ब्यूटीफुल ड्रेस थी वो, दैट ही नेवर वोर, वो कभी नहीं पहनता था, एक्सेप्ट की बजाय ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, डिसाइड कि वो प्राइज डे इंस्पेक्शन के अलावा वो ड्रेस कभी नहीं पहनते थे। कौन? उनके टीचर, कि उसके दिन कोई स्पेशल ओकेजन होगा, क्योंकि जैसे उसने ड्रेस को देखा तो उसके मन में आया कि हमारे टीचर तो कभी इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस पहनते नहीं है, और वो कब पहनते हैं, जब कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो या कोई स्पेशल ओकेजन हो, तो उसके मन में आया कि आज कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन या स्पेशल ओकेजन है। The whole school seemed so strange, सारा स्कूल मुझे अजीब लग रहा था, strange मतलब क्वाइट था, हमेशा तो शोर होता रहता, आज बिल्कुल शांत था, and solemn, अकेलापन, बिल्कुल सुनसान, okay, but the things that surprised me, लेकिन वो चीज जिसने मुझे सबसे सरप्राइज किया most was to see, ये देखिए on the back benches, जो
पीछे के बेंचेस थे that were always empty, जो हमेशा खाली रहते थे. The village people sitting quietly, कि उसपे विलेज के लोग खाली बैठे थे और क्वाइटली बिल्कुल शांत बैठे थे. लाइक आवरसेल्फ, हमारी तरह. ओके, वहां पे भी कौन बैठे थे? गांव के लोग बैठे हुए थे. ओके, कहां पे? बैक बेंच. तो बैक बेंचर थे वो कौन थे? आज गांव के लोग थे. पहले वहां पे वो खाली जगह रहती थी, कोई नहीं बैठता था. ओके, उसमें कौन कौन थे? जो विलेजर्स थे. सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्फ ओल्ड होसर विद हिज 3 कंसर्न हेड. ओके, तो मिस्टर होसर थे जो उनके साथ बैठे हुए थे. द फॉर्मर मेयर. ओके, फॉर्मर पहले जो मेयर थे वो थे. द फॉर्मर पोस्टमास्टर, सेवरल अदर बिसाइड, और काफी लोग उनके साथ बैठे थे. तो उनके साथ में कौन कौन थे? बैक बेंचर थे. मिस्टर ओल्ड होसर, मिस्टर मेयर, फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर, और कुछ और गांव के लोग उनके साथ बैठे थे. एवरीबॉडी लुक सैड, सभी लोग उदास लग रहे थे. एंड होसर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर. ओके, होसर थे वो अपना ओल्ड प्राइमर. प्राइमर किसको बोलते हैं? कायदा. ओके, आपको प्राइमरी सेक्शन में जो बुक होती है उसको बोलते हैं प्राइमर. मतलब कि होसर अपना कायदा लेके आए थे. थंब एट द एज,